some match over. So we'll have an in conversation featuring with Miss Arushi Nishank, Sparsh Ganga activist, classical dancer and author, along with our Dr. Vijay Prabhakar. Please give a very warm, big hand clap. Good afternoon. I'm delighted to present one of our very own young whiz kids in India today, Mrs. Arushi Nishank. She is not only an accomplished Kathak dancer, she is an author in her own right, and I've seen her in action, how she communicates with the Karyakathaks, the youth, and with people like us who come to call on her. And she is a class by herself. And I see a lot of youth today, and we had specially invited her. So when you guys grow up, you can be like a role model like her. She has taken up a cause which is very unusual for such an accomplished person like herself. She is a brilliant writer, an academic scholar. She lived in Dubai. Her father was the Chief Minister of Uttarakhand State, Mr. Ramesh Porial Nishkant, who's now the Union Minister for Human Resources Development, who's in charge of developing all the young minds across the country, from school children to higher education. But what brought her, allured her most, we're going to find out today about her journey, and how she's become a Modi Bhakt and the Prime Minister's vision. She has left her very lucrative occupation of being, I would say she looks like a film star. She will give any one of our Bollywood heroines or Hollywood heroines a run for their money. But what she has chosen is what you're going to listen during this conversation. Arushi ji, namaskar. Welcome to you this afternoon. And thank you so much for coming. Yesterday she was in another part of the country, and today she's here. Arushi ji, just tell us about your early childhood. सबसे पहले I would like to take an opportunity to greet all of you. And sir has given such a beautiful introduction about me, but it cannot be completed till the time I will tell you that I, Arushi Nishank, comes from this state जिसे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है. ये वो राज्य है जो गंगा की जन्मस्थली है, आयुर्वेद का जनक है, और ये मेरा वही राज्य है जहाँ की महिलाओं ने भी पेड़ों को अपना बच्चा समझकर उन्हें गले से लगाकर पूरे विश्व को चिपको आंदोलन दिया. ऐसे राज्य की बेटी मैं अरुषि निशंक आप सभी को प्रणाम और नमन करती हूँ. तो जैसे कि आप पहले ही मेरे बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं. आई एम इंटरनेशनल कथक एक्सपोनेंट, राइटर, एंटरप्रेन्योर एंड अ मूवी प्रोड्यूसर टू. आई डू नॉट एक्ट, बट आई एम अ प्रोड्यूसर. समहाउ आई एम कनेक्टेड टू दिस इंडस्ट्री एज वेल. हम सभी लोग यहाँ पर यूथ भी बैठे हैं, काफ़ी बच्चे बैठे हैं. वी ऑल हैव अकम्प्लिश्ड सो मच इन आवर लाइफ. हमारा जो चाइल्डहुड होता है, जैसा कि आपने से पूछा अभी, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग बहुत ही फर्टाइल होता है. जो चीज़ें वो देखता है, समझता है, उसका उसके दिलो दिमाग पर और लाइफ के विजन पे बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड आई एम ग्लैड टू से कि मेरा जो बचपन है वो शुरुआती जो है वो उत्तराखंड में बीता, और मैं गंगा के किनारे पैदा हुई. और वो गंगा जिससे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि भारत में रहते हुए हर व्यक्ति का परिचय जुड़ता है, क्योंकि हम सब कहते हुए बड़े हुए हैं कि हम उस देश के वासी हैं. वंडरफुल. सो वी ऑल नो दैट. ऐसी स्थिति में जब मेरा चाइल्डहुड जो है वो गंगा के किनारे और उत्तराखंड जैसी खूबसूरत वादियों में हुआ, तो सर्टनली एक जो कनेक्ट था फ्रॉम नेचर वो मेरे साथ जुड़ता चला गया. और उसके बाद मेरी जो एजुकेशन हुई वो वनस्थली विद्यापीठ में हुई, विच इज़ इन राजस्थान.
And one incident happened in Vanasthali which turned my life into a different way. I saw one mother making her child taking bath and she helped him. एक खाट के ऊपर उसको बैठा के नहला रही थी, नीचे एक टब रखा था. और जब वो बच्चे ने स्नान खत्म कर लिया, उसके बाद उस औरत ने उस टब के पानी से घर के और कामों को किया. And there I could understand when the whole world is talking about circular economy. हम बात करते हैं resources are limited in scarcity. ऐसे में वो औरत, वो भारत की औरत, उसे पता है कि उसको रिसोर्सेस का सदुपयोग कैसे करना है. वी आर द रियल एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. सर, आपने मेरे चाइल्डहुड पे बात शुरू करी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हुए आई वुड लाइक टू टेक इट टू अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज. क्योंकि आज हम सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, एक बहुत बड़े कॉज के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उससे बहुत कंसर्न रखते हैं. इसीलिए नमामि गंगे जैसे, स्वच्छ भारत जैसे मिशन और विजन को हमें दिया गया है. तो एक छोटी सी एक्सरसाइज इसीलिए, ताकि हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सके कि व्हाई वी ऑल सिटिंग हियर टुडे. तो जब हम सभी लोग छोटे थे, हमारी टीचर हमें बोला करती थी कि एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाइए सीनरी का. हम सभी लोग क्या क्या बनाया करते थे? Yes, so let's start with the mountains. Wonderful. Filled with snow. And we had rivers, which was in color of blue. We had so many Surya Devata, trees, birds. Such a beautiful portrait. But I'm sorry, ladies and gentlemen, because today we are sitting in the scenario where global warming is upon our head. 50 सालों में जस्ट दुगना हो चुका है हमारा टेम्परेचर. इसीलिए वो पहाड़ तो हैं, लेकिन उस पर बची हुई स्नो नहीं रह गई. आप बात करते हैं नीली नदी की. 1.9 बिलियन लीटर गार्बेज डम्प्ड इनटू गंगा एवरी सिंगल डे. और पानी की बात अगर मैं करूं, तो आज भी 163 मिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. पेड़ की बात हम करते हैं, 16 मिलियन ट्रीज कट डाउन ईच ईयर. एंड दिस इज अ सिचुएशन टू थिंक अबाउट. क्योंकि ये जो खूबसूरत सीनरी आपके और हमारे जहन में है, जरूरी नहीं है कि वो आगे की जनरेशन को हम कैरी फॉरवर्ड कर सके. और इसीलिए हमें इस बात को लेकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस होता है कि आज के दिनांक में हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो ऐसे इंसान हैं, छोटी सी बात टॉयलेट, शौचालय की बात करते हुए भी आप और हम झिझकते हैं, लेकिन ऐसे आदमी ने पूरे भारत को मोर देन 90 CR टॉयलेट्स दिए. ऐसे देश में होते हुए हम सभी को गर्व होना चाहिए. एंड जो लार्जर कंसर्न के साथ हम सभी लोग बढ़ रहे हैं, नमामि गंगे इज वर्किंग लॉट फॉर क्लीनिंग रिवर्स. हम लोग स्पर्श गंगा से नमामि गंगे के साथ में मिलके बहुत सारा काम करते हैं. और आगे बढ़ते हुए सर, यू कैन, आई एम सॉरी. No, Arushi ji, it's here to hear about you. It's so surprising that a girl from Uttarakhand has dedicated her life to Sparsh Ganga and to part of the Ganga Regeneration Project, which has been launched by our visionary Prime Minister in 2014, and now he has made a Jal Shakti ministry. And Arushi ji, you also touched on climate change and global warming. Could you tell us more about how you are Sparsh Ganga, which you have started, what all you have done towards that, achieving that goal? I know you have traveled across the world. You're still traveling throughout India. You're talking about afforestation, planting trees. Please enlighten us on that. बिकॉज मेरे कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं अपनी ये जर्नी का छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था. इन 2015 उमा भारती बुआ जी, जो कि उस समय में मंत्री थी, उनको मैंने बोला कि बुआ जी, हम लोग एक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमामि गंगे का प्रोग्राम करना चाहते हैं। वहाँ से जो सारे विदेशी हमारे लोग हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपनी ज़मीन से जुड़े हैं, जितना हम लोग यहाँ चिंता करते हैं उससे ज़्यादा चिंता वो लोग करते हैं, और ऐसे में हम लोग दुबई में एक इवेंट करना चाहते हैं। Unfortunately, that moment she said, yes, go ahead. But because of the few circumstances, I couldn't get support from the Namami Gange department. My husband asked me, what do you want to do? I was sitting in Dubai. अभी क्या करें? लेटर भी नहीं आया सपोर्ट, इवेंट कैसे करें? माई हस्बैंड सेड अगर करना है तो अपनी जिद पे करो। हम लोगों ने अपनी जिद पर पहला नमामि गंगे का ओवरसीज प्रोग्राम, वी कॉल्ड इट गंगा तुझे सलाम। वी आर सिटिंग इन अ इस्लामिक कंट्री एंड दे ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ वाटर एंड गंगा। We created this event. We called all the Forbes listed billionaire people in Dubai. हमारे एक महाशय ने 5 CR की स्पॉन्सरशिप रेस करके मंत्री जी के हाथ में थमाई, और उसके बाद में मुझे बुलाकर नमामि गंगे का प्रमोटर, ऑफिशियली प्रमोटर बनाया गया। आफ्टर दैट आई डिड लॉट ऑफ इवेंट फॉर नमामि गंगे टू। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि जब आपके दिल में कुछ काम करने का जज्बा होता है तो आपको कभी किसी के सहयोग के लिए नहीं देखना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। सहयोग खुद ब खुद चलकर आपके साथ में आ जाता है। और स्पर्श गंगा जिसकी वजह से आज आप और हम कनेक्टेड हुए हैं, आप और हम सब कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि गंगा और पानी हर किसी को जोड़ता है। स्पर्श गंगा स्टार्टेड इन 2008। आज की दिनांक में 5.5 लाख से अधिक लोगों को हम पूरी देश और दुनिया से अपने साथ जोड़ते हैं। 2.5 लाख लोगों को हस्ताक्षर कराकर स्पर्श गंगा प्रहरी बनाते हैं, जिसके लिए हमारा नाम गोल्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 80 कॉलेजेस, उत्तराखंड के 150 स्कूल कॉलेजेस एंड पूरे भारत के 5 अधिक देशों में हमारे अपने ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि सिर्फ बातें नहीं करते। हम लोग हर संडे एक वीकली क्लीनिंग ड्राइव होता है हमारा, जिसमें गंगा, यमुना, गोमती और अभी बहुत ही जल्दी कावेरी भी हमारे इसमें जुड़ चुका है। हर संडे हमारी टीमें जाके इनकी साफ सफाई करती हैं। हम लोग प्लांटेशन ड्राइव को बहुत जो है वो बहुत गंभीरता से लेते हैं, और पिछले साल हम लोग 10 लाख पेड़ों को लगाकर उनकी चिंता करते हैं। और सेल्फी विद माई स्पर्श ट्री जैसे अभियानों को लेकर हम लोग जो है वो सारे यूथ को इससे कनेक्ट करके उनको उसका इम्पोर्टेंस बताकर काम करते हैं। इसके साथ साथ आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। आई जस्ट स्टार्टेड माई कन्वर्सेशन विद सर्कुलर इकोनॉमी। ऐसे में स्पर्श गंगा 800 महिलाओं को रोजगार देती हैं उत्तराखंड में, जो कि बिमल हमारा एक पेड़ से एक फैब्रिक निकलता है, उसकी सुंदर बास्केट्स बनाती हैं, विच इज़ यूज इन उत्तराखंड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक। एंड जितना भी गंगा से हमारे फूल पत्ती निकलते हैं, उनको नब फाउंडेशन के साथ मिलकर स्पर्श गंगा उनसे सेंट स्टिक्स बनाता है। हमारे बच्चे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस ओवर हो जाते हैं तो वो जो पोस्टर बच जाते हैं सर, उसको भी हम खराब नहीं करते। उनसे हमारे बच्चे, स्पर्श गंगा के बच्चे, बहुत ही खूबसूरत पेन्स को बनाते हैं, विच वी हैव गिफ्टेड टू मैनी डिस्टिंग्विश्ड पीपल। एंड दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग। एंड आज मैं यहाँ पर हूँ तो आप सभी लोगों को भी आह्वान करना चाहूँगी कि स्पर्श गंगा में आप लोग भी जो है वो हमारा साथ दें, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है और हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ प्लैनेट बी। दिस इज ऑल वी हैव राइट नाउ। Fabulous, Arushi ji. Recently, you were awarded the Champion of Change Makers 2019 for all your wonderful work in Sparsh Ganga. What would you tell us, and especially your generation, how to carry forward that agenda? Awards are always good because they motivate you, and we all need all kind of appreciation and motivation. Maybe sometime it is positive and many times it's negative too. This happened in my childhood. Today I'm an international Kathak exponent. I'm a ICCR and Doordarshan graded artist as well. I have covered more than 15 countries up till now, performing, teaching Kathak. But how it started, it wasn't very beautiful initially. जैसे मैं आज आप लोगों को दिख रही हूँ, मैं बचपन में ऐसी नहीं हुआ करती थी. I used to be very, very fat. And every time my dance teacher picked me up from the group and say, नहीं इस बार नहीं अरुषि, next time लेंगे. And I used to cry like hell. एक दिन
बड़ी हिम्मत जुटाकर आई वेंट टू माई टीचर एज लाइक, जी क्या बात है, हर बार आप मुझे ग्रुप से निकाल देती हैं, तुम थोड़ी मोटी हो। एक बाल मन पर इस बात का क्या असर हो सकता था? झूठ नहीं बोलूंगी, पहले तो जाके खूब रोई एंड कोसा भी कि इतनी मोटी हूं। लेकिन उस दिन एक चीज ठानी कि एक दिन आएगा कि मैं बहुत बड़ी परफॉर्मर बनूंगी। एंड फॉर्चुनेटली आफ्टर 10 years of that incident, I become part of SPICMECE, which goes to different school colleges, and I happened to go into my own school, where my teacher was sitting and seeing my performance. At the end of that, I went to her and I asked her, "कि जीजी मैं आज तो मोटी नहीं हूँ ना?" And she was in all tears. So we all have to take few incidents into, you know, a push. We all go through with many things. आपको अभी सर ने बताया, my father is the ex-chief minister of Uttarakhand. Today he is a HRD minister. हम सभी लोग जो यहाँ बैठे होंगे एक पल के दिमाग में आ रहे, वाह, wonderful life she has. Grass always look greener on other side. Because every time I go for any panel, I sit anywhere, I talk anywhere, I perform anywhere, every single time I have to prove that maybe I get this opportunity because of my father, because he is my father. But अगर आज मैं यहाँ हूँ तो वो मेरी capability है। तो मुझे हर बार, शायद हर इंसान को जिंदगी में अपने आप को एक बार प्रूव करना पड़ता होगा, लेकिन मेरी जिंदगी का संघर्ष ये है कि मुझे हर पल और हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हर किसी की जिंदगी अपनी तरीके की, अपने तरीके के संघर्ष का लाइन है, और हमको दूसरे से कभी जेलसी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात तो मैं औरत होके बोलूंगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बहुत सुना है हमने। And when I talk about women empowerment, we cannot reach women empowerment until unless we understand that we have to be connected. जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Arushi ji, you hit the right point. You also received the Transformational Award for Swachh Bharat in one of the districts in Uttarakhand. You've done wonderful work. Like you rightly said, when we first met Arushi ji, when we were having the January 6th commemorative book launch of Ma Santosh ji, the Mother Teresa of Chicago, we met her. She was so simple. She received us with warmth, and she was talking to Karyakat in chaste Hindi, crisp. She walked in with us. She conversed with us. We were talking about Global Eye, which is the digital news monthly, which reaches 3.5 crores throughout, including 3.3 crores households in India, 1 million in the United States. And she was very crisp. And what she said and what touched all of us who was there with us is her simplicity, is her sincerity. She came right to the point and talked about Pash, Sparsh. That was the first time I heard the term Pash. I knew Ganga regeneration. And I asked her and she explained. And she's written books. She's an awesome international Kathak dancer, as you can imagine. Like she said, a story of how one negative thing became positive. And she has been such a bundle of energy, and she couldn't join us in January because of her schedule, but we insisted that she comes and talks about this, which will inspire our youth. And through her message today, which is going to go out to over 3.5 crores of our subscribers all over the world, including 3.3 here, there is still a youth who can look modern, act modern, brought up modern, but inherited in India's soil. Concerned about how many of our youth, you can ask Ajit Singh, Anil, Arulvel, Parshuraman sir also, they all are thinking about making it to America, becoming Bill Gates, being the next Michael Jordan, or becoming, but nobody's thinking about their homeland, India, and about Ganga, which gives water and life to thousands, and it's a very holy part of our country's civilization and India. Arushi ji, tell us something about your husband. I know you're married, and everybody would like to know, how do you, with your busy lifestyle as a volunteer, who has touched so many students, and she's still, as she said, about having the selfie of each student with a tree. She's having a tree planting campaign, afforestation throughout the country. And let's hear something about your current family's lifestyle, how you're
coexisting and how you're compiling that and how you are. Her husband has been very supportive, obviously, being a businessman too, and allowing his wife to take this initiative. As you, many women will know in the audience how difficult it is to pursue their passion. A very interesting chapter of my life because each girl has to go through this and हम कितनी भी आज बात कर ले वुमेन एम्पावरमेंट की, अ प्रोग्रेसिव इंडिया, पर आज भी जब तक हमारे भारत में लड़की की शादी नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं माना जाता, ना उसको, ना उसकी जर्नी को, ना उसको. तो यस, आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम चैप्टर एंड आई टोल्ड माई मदर कि कभी भी होगा मैं चाय की ट्रे लेकर नहीं जाऊंगी. आई विल नेवर डू दिस एग्जिबिशन. आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड. Unfortunately, I lost my mother in 2013 and she was going through a cancer. उन्होंने मुझे हमेशा एक बात बताई. मैं उनसे पूछती थी कि बहुत सारे लोग आते हैं तुम्हारे पास, बोलते हैं कि बेटी की शादी नहीं हुई, एक बेटी की शादी कर दो, एक बेटी की शादी कर दो. क्योंकि तुम्हें चिंता नहीं होती कि मेरी शादी नहीं हुई, तुम कभी प्रेशर नहीं बनाती. She told me, what you doing in this young age, that bring me a lot of joy. I don't want to see you with any boy because I see you working as a girl and boy both for this family. But ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं थी मेरी शादी हो. और मेरी मदर की ही फ्रेंड हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, और उन दोनों ने ही बहुत सालों पहले हमारा जो है वो गठबंधन कर दिया था, लेकिन हमें बताया नहीं गया था. और माई हस्बैंड अभिनव वॉज स्टार्टिंग इन लंडन दैट टाइम. It's a very filmy story. When he came to India, that is the time I saw my mother taking the last breath, because I believe she was just waiting for him to come without telling anybody. और हमें उसके बाद भी नहीं बताया गया. I respect my family for that because they let us take our decisions. मेरी मदर के जाने के 2 साल बाद अचानक से मेरे पिताजी उठे और मेरी मदर लॉ के पास गए. बोले कि इन दोनों से बात करो, अगर इन्हें कुसुम की इच्छा थी कि ऐसा हो, पर बात करो इन लोगों से. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड माय हस्बैंड, सी आई एम नॉट, आई डोंट वांट अ हस्बैंड फॉर माई सेल्फ, आई वांट अ सन फॉर माई फैमिली. एंड यू बीइंग इन दुबई, हाउ इट गोना हैपन? आई कैन नॉट लीव एवरीथिंग, यू नो, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अब वो एड ऑन होंगी क्योंकि आपका परिवार का भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी. So he said that I have to come back to India, and certainly I understand everything. And that is how it started. I'm very, very fortunate. It's been 5 years, we got married now. And yes, certainly we need somebody in our life, you know, to tell you that you are going on the right path. और इसीलिए उसे soulmate कहा जाता है. And I always found this my soulmate in my mother and my husband. तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लड़के अच्छे नहीं होते. शादी करनी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं करना, एक वुमेन एम्पावरमेंट का वो ऐसा नहीं है. व्हेन यू फाइंड अ राइट मैच, और हमेशा अपने परिवार की ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपका परिवार जानता है कि आपके लिए बेहतर और द बेस्ट क्या हो सकता है. और ये भी हमारे परिवार का निर्णय था, जिसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मेरी मदर की आखिरी इच्छा यही थी. And I found the best companion in my husband. Or if I am talking about my husband, I really need to talk about my father also. Yes, please go ahead. Yeah, क्योंकि आप में से कोई वीडियो भेजेगा तो बुरा मानेंगे कि मेरे बारे में. Just joking, but certainly आपके माता पिता जो संस्कार आप में बचपन से डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पिता ने हमें एक संस्कार डाला था. हमने एक दिन पूछा था कि मूवी देखने जाना है, और बोला कि आप सीएम हैं, बोलिए वीआईपी पासेस अरेंज करेंगे. तो बोले सीएम कौन है? हम कहा आप. मूवी किसको देखने जाना? हमने कहा हमें. तो तुम्हें वीआईपी पास क्यों मिलेगा? एंड दैट डे आई वाज सो क्लियर इन माय माइंड, व्हाट इज माय फादर, दैट्स बिकॉज ऑफ हिम. एंड व्हाटएवर सर्विसेज ही हैज टू प्रिवेल, ही विल प्रिवेल. मुझे अपनी जिंदगी, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा. अगर मुझे सीएम की तरह जीना है, मुझे सीएम बनना पड़ेगा. मुझे वहाँ तक की जर्नी तय करनी पड़ेगी. अगर मुझे अच्छे कपड़े पहनने, तो मुझे खुद कमाना पड़ेगा. आई कैन नॉट डिपेंड ऑन माई फादर और लेटर ऑन माई हस्बैंड. इफ आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो मुझे खुद सर्वाइव होके खुद खड़ा होना पड़ेगा. आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी फॉर दिस. आई कैन नॉट ब्लेम माई फादर, आपने मुझे यहाँ नहीं भेजा, आपने मुझे ये नहीं दिया. आपको खुद इतना बनना पड़ेगा.
और हमने उनसे सर हर पल चीज़ें सीखी हैं. माई फादर स्लीप्स ओनली 4 hours a day. वो रात में सिर्फ 4 घंटा सोते हैं. इतनी व्यस्तता के बाद भी उनका अब तक कम से कम 60 और 70 किताबें आ चुकी हैं, क्योंकि वो चलते हुए भी प्लेन में लिखते हैं, वो गाड़ी में चलते हुए लिखते हैं, वो रात में लिखते हैं, क्योंकि वो कवि हृदय है. तो राजनीति में आने से उनका लिखना बंद नहीं हुआ. और मुझे लगता है वही संस्कार हम लोगों में आया कि किस तरीके से हर एक एक पल को कहते हैं, एक एक पल तुम जी नहीं रही हो, वो जो पल यूटिलाइज नहीं हुआ वो मर रहा है. और दूसरी बात जो वो कहते हैं, जो हमारे बाबूजी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक बात ज़रूर याद करना चाहूँगी. वो कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता. और मुझे लगता है हम सभी को ये बात अपनी ज़िंदगी में याद Arushi ji, रखनी you're so चाहिए. profound. You know, when I have, if those of you don't know, I have been a close associate of great women leaders and leaders too. With Jayalalitha ji, I was a very close friend and associate of her, as Dr. Selva Kumar and Dr. Yuvraj, my college mates, will know from our college time. And also, I had glimpses of Indira Gandhi ji, because I was heading an organization as Tamil Nadu Youth Association when I was 18 years old, and we did the anti-dowry pledges and all that. And we were thinking, after Jayalalitha ji has gone, the Iron Lady of India, we are bereft of any women leaders. You see, today, the Prime Minister of New Zealand is a woman. The Prime Minister of Finland is a woman. And what struck me as I was going out of Arushi ji's home after that wonderful meeting with Ma Santosh Kumar ji, I was telling Ajit, Singh, who was with us at that time from Chicago, I said, Ajit, I tell you, I see in Arushi the touch of Indira Gandhi. And today, I'll proudly tell you at this Global Icon Conclave, she will be the next woman Prime Minister of India. Thank you. I have no doubt in my mind. As Dr. Yuvraj, who you heard him speaking earlier, the expert from artificial intelligence, who always says he's very good in political scouting and he tells talent. But I'm telling you all today, the amount of work and energy you can all see. And purity and sincerity. And who's also can pass for a very modern day digital woman.